थॉमस मैथ्यू साहब, अनरिलायबिलिटी भी है, अनप्रडिक्टेबिलिटी भी है, और साथ में पीटर नवारो और स्कॉट बेसेंट के जो बयान आ रहे हैं ट्रंप के नरम पड़ने के बाद भी, ये सब क्या दर्शाता है? भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्योंकि अभी आपने देखा ही कि किस तरह से मेजर रिस्पांस भारत की तरफ से जा रहा है। भारत अभी भी सतर्क है और सतर्क रहना चाहिए। Like, like Lakshman, like Sikri Madam said, our response has been cool, calm, and collected. I think that's the way we need to respond. We should not overreact. At the same time, we should not read too much into Trump's statements because there's something very interesting that New York Times wrote about him in 2018. They say his ideas are half-baked and ill-informed. This is what you need to understand. This is the basic understanding of the president's mental capability. So this kind of unpredictability will be there. And we also need to know one important factor. We believe that India is very important for the United States. Please, my personal analysis is that India has never been important for the United States. As you know, I said in many fora, except for George W. Bush and Jimmy Carter to a certain extent, no other American president has been really careful about nurturing India-US relations. Even Barack Obama, for that matter, in 2005, he said that our prime minister, what I believe the prime minister, but I need to verify what he's saying. Similarly, if you look at Bill Clinton, if you go back in the history of the relationship, after the Pokhran test, Bill Clinton had meetings with the Chinese president and placed India and Pakistan on the same plane. So while understanding that India is the largest, please understand, Lakshman, let's just go back into India-US relations. Our honorable Prime Minister had said that India and US are natural partners. Please understand, our former Prime Minister Vajpayee Saab, who was mainly responsible for nurturing India-US relationship, spoke in the US Congress in 2000 that India and US are not only natural partners, but natural allies. Please understand this. Did that make any difference? Actually, it does not. See, to me, a nation is important for the US if, number one, it is important for the trade from the America's point of view. Or number two, it is strategic importance in terms of defense capabilities would contribute to America's defense preparedness around the world. I think until India reaches that position. Now, look at India's trade with the US. It's only 2.4% of the total American trade. You should understand one thing. China's trade, that is the US trade deficit with China is about $295 billion. India's trade deficit with US is only about 15% of the trade deficit US has with China. And why has Trump decided to single out India and make a bad example? That is because the lack of importance of India for Washington. And that comes from lack of heft, according to me. This is what I personally... Otherwise... थॉमस मैथ्यू साहब, मैं आपको बीच में रोकूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इंडिया यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जब सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत पड़ी तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को लेकर के एग्रेसिव हुआ। तो दोनों थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। अगर इंडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो हाँ, प्लीज। See, for Trump, please understand, India is not, it is not Trump administration. Right from the beginning onwards, they have always hyphenated India and Pakistan. Even now, see, can you imagine Pakistan's Field Marshal Army Chief being hosted for lunch by an American president? It is unheard of. So if India was important in the American strategic calculus, according to me, the situation would have been different. I don't believe that it is because of India's aggressive stance that the US has changed. I think it is India's, like Sikri Madam said, India's nuanced approach.
I think that's what वीना will change. ठीक, वीना सिकरी मैम, आप कैसे देख रहे हैं इनका? थॉमस मैथ्यू साहब का व्यूज़ आपने सुना कि ये हम लोग भले ही माने यूएस को बड़ा अपना पार्टनर, ट्रेडिंग पार्टनर, लेकिन इंडिया जो है यूएस के लिए बहुत बड़ा पार्टनर नहीं है, और यूएस उस तरीके से देखता है कि उनके शर्तों पे अगर हम खड़ा उतरते हैं तो ठीक है। नहीं, देखिए, एक बात ये है कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हम बिलीव करते हैं मल्टी अलाइनमेंट में, इसलिए हमारे पास ये शक्ति है कि हम जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं वो बड़ा ही केयरफुल है, रिस्ट्रेन है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो रिलेशनशिप अन्य देशों के साथ है उस पर हम जोर दे सकते हैं। और आपने देखा कि तुरंत जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पहले कहा था, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी एससीओ समिट के लिए गए थे, और उधर उनकी डिस्कशन हुई प्रेसिडेंट पुतिन के साथ और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ, और उन्होंने आपने देखा होगा, सारे ने विजुअल्स देखे कि कैसे कैसे है, तो उनको पता चल गया कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। और हमारी जो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की, उसमें यही लिखा है कि हम अमेरिका के साथ भी दोस्ती चाहते हैं। ये हम, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी एससीओ समिट पे गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका को ठुकरा रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। हम उनके साथ भी बनाना चाहते हैं, अन्य देशों के साथ भी बनाना चाहते हैं। आप देखिए कि हमने हाल में ही यूके के साथ एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट निगोशिएट किया है और साइन किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए हम टारगेट है कि अगले 5-6 सालों में ये बायलैटरल ट्रेड यूके के साथ डबल हो जाएगी। तो जो भी शॉर्टफॉल अमेरिका के साथ हो, जो हमारे एक्सपोर्टर्स जिनको अमेरिकन के मार्केट में दिक्कत लग रही हो टैरिफ के बाद, तो वो यूके का मार्केट देख सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स तो वही है ना, जो एक एग्जांपल आपके पास चाइना भी है। चाइना भी इसका एक एग्जांपल है। चाइना को लगा कि हमें यूएस में ट्रेड में दिक्कतें हैं, और उसने पूरे अपने ट्रेड को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। काफी हद तक साउथ अफ्रीका शिफ्ट किया, बाकी जगहों पर शिफ्ट किया। प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद कहा कि जो भी आपके प्रोडक्ट अमेरिका नहीं जा रहे हैं, आप हमारे यहाँ भेज दीजिए। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा हम तैयार हैं। और दूसरी बात, हम ईयू के साथ एफटीए अब नेगोशिएट कर रहे हैं, वो भी कहते हैं काफी एडवांस स्टेजेस में है। ऐसे करीब 8 से 10 कंट्रीज है जिनके साथ हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसा नेगोशिएट कर रहे हैं, अलग अलग नामों से। तो एक हमारा एक मार्केट दिख रहा है। मतलब अभिजीत दास साहब, क्या यूएस को समझ में आ रहा है कि अगर हम ट्रेडिंग पार्टनर को खो रहे हैं तो उनके पास दूसरे ऑप्शन हैं? जैसा कि वीना सिकरी मैम कह भी रही थी कि एक एससीओ समिट का इम्पैक्ट के तौर पर देखा जा सकता है, बाकी देशों में हम लोग जो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने ट्रेड को, इसके इम्पैक्ट के तौर पर देखा जा सकता है ट्रम्प के इस रणनीति में बदलाव को। लक्ष्मण, ये निगोशिएटिंग थियरी में एक बहुत सिंपल एक प्रिंसिपल है। निगोशिएशन में वो ज्यादा सशक्त होता है जिसके पास ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो इंडिया ने ये दिखला दिया एससीओ समिट के थ्रू कि हमारे पास पॉलिटिकल एलाइज की कमी नहीं है, ऑल्टरनेटिव्स हैं। और जो हम अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, वह भी ये शो कर रहा है कि हमारे पास अमेरिका के अलावा और ऑल्टरनेटिव्स हैं। ऑफ कोर्स हम लोग ओवरनाइट अमेरिका को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स की तलाश है। अपने डोमेस्टिक मार्केट को भी और सुदृढ़ किया जा सकता है। इसलिए इन सब फैक्टर्स को देखते हुए मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपना अलग राग आलापना शुरू किया है। अब यह देखना जरूरी होगा कि आगे की वार्ता कैसे चलती है। उसमें जो समस्या है, आज से यदि आप 1.5 महीना पहले देखें तो हमारा उद्देश्य क्या था नेगोशिएशन में अमेरिका के साथ, कि जो 25% टैरिफ है उसको कम करें। आज के तारीख में क्या उद्देश्य है कि वो 25% टैरिफ को भी कम करें और जो रशियन पेनल्टी लगा है उसको भी कम करें। तो अब हमारे लिए तो टास्क और अपहिल होता जा रहा है ना।